بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانے والے ہیں، جنہیں کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے پیغمبر کا شرف حاصل ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوالات کیے جن کا جواب سن کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کئی لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے، مگر کئی مخلص پیروکار بھی تھے جو آپ کو مانتے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ جب بھی کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، التجا کرتے کہ ہماری عرضی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجیے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک عجیب سی طرف لیے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک نور کی ایک ایسی تجلی ظاہر ہوئی کہ پورا ماحول لرز اٹھا۔ اس نور کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، تجھ سے گفتگو کی، تجھے اپنی قربت دی۔ یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں نہیں بلکہ ان کی روح میں سرایت کر گئی۔ وہ ادب سے کھڑے تھے، سر جھکایا ہوا تھا اور زبان پر عاجزی تھی۔ اے میرے رب، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں دیے، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری ہی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب بندہ یہ جان لے کہ اس کا شکر کرنا بھی میری عطا ہے تو وہ میرا کامل شکر گزار بن جاتا ہے۔ اس ایک جملے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایسی روشنی ڈالی کہ ان کی روح پر سکون کی بارش ہونے لگی۔ انہیں معلوم ہوا کہ شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، ایک راز ہے جو صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جن کے دل میں عاجزی ہو۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اے موسیٰ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نعمتیں دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں کم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، تیری نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، نعمتوں کو گننا شکر نہیں، نعمتوں کو پہچاننا شکر ہے۔ جو نعمتوں پر راضی رہے وہی میرا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شکر کا دریا بہہ نکلا۔ جب وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ لوگ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے قوم کو جمع کیا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ شکر کرنے والے کے گھر میں سکون اترتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے دل میں نور بن جاتا ہے۔ ناشکری وہ آگ ہے جو نعمتوں کو جلا دیتی ہے، اور شکر وہ بارش ہے جو رحمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، شکر کب مکمل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہیں مصیبت میں بھی وہی اللہ یاد آئے جو آسانی میں یاد آتا ہے، جب تمہارے دل میں نعمت دیکھ کر تکبر نہ آئے بلکہ عاجزی بڑھ جائے، جب تم زبان سے الحمدللہ کہہ کر دل سے بھی راضی ہو جاؤ،
तो समझ लो तुमने शुक्र का दरवाज़ा पा लिया। अमीर और गरीब का वाक़या। एक मर्तबा का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना, माल और दौलत। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। आप अल्लाह से मेरी इल्तिजा करें कि मेरा थोड़ा सा माल कम कर दे ताकि मैं उसे अच्छे से संभाल सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया कि मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पेश करूँगा। अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि एक और शख्स हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, लिबास फटा हुआ था और वह बहुत लाचार लग रहा था। उसने भी अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो आप उनसे कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दें और वो मुझे भी थोड़ा सा माले दुनिया अता करें। मैं मेहनत करके थक चुका हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा ये सवाल भी ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना कि वह मेरा शुक्र अदा करता है, और ये कैसे हो सकता है कि मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं। ए मूसा, उससे कहो कि वह मेरा शुक्र बंद कर दे तो मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ए मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है वह मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उसे जाकर ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, मैंने उसे आंखें तो दी है, कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे तो मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए और सबसे पहले उस शख्स से मिले जिसने दौलत कम करने की इल्तिजा की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे खुदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तूने मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतों को कम कर दूंगा। वह शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दिए, ज़ुबान दी, हाथ पैर सलामत दिए और ज़माने में इज़्ज़त दी, मैं उसका शुक्र कैसे अदा ना करूं? माल ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और उस गरीब व लाचार शख्स से मिले और उसका सवाल बताया। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। वह शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, मैं अब किस चीज़ पर शुक्र अदा करूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से अपने आप को देखो। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें ज़ुबान दी है जिससे तुम बोलते हो, कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, हाथ और पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नेमतें नहीं है? तुम उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करूँगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो बस तुम्हारी नेमतें भी कभी तुम्हें नहीं मिलेगी।
शुक्र के मज़ीद असरार। नाजरीन, इस वाक़े में बहुत बड़ा सबक पोशीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा नवाजता है और उसकी परेशानियां दूर करता है। हमारे पास जो होता है हम उसकी कद्र नहीं करते और जो नहीं होता है उसकी चाहत करते हैं, और यही चीज़ हमें परेशान करती है। हमें नाशुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र के साथ शुक्र को भी शामिल फरमाया है। फरमाने इलाही है, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं नेमतों को ज़्यादा करूँगा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसके दिल को सुकून कैसे मिलता है? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब मेरा बंदा गुस्से में हो और उस वक्त में भी मुझे याद करे तो मैं उसके दिल में अपनी रहमत डाल देता हूँ और उसके गुस्से को ठंडा कर देता हूँ। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, ए मेरे रब, मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुआ करूँ तो फ़ौरन कबूल हो जाए। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, मेरे यहाँ हर दुआ कबूल है, लेकिन मैं हिकमत के मुताबिक कुछ दुआएं फ़ौरन पूरी करता हूँ, कुछ देर बाद, और कुछ के बदले में मैं मुसीबतें टाल देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए रब, बंदा कैसे जाने कि उसकी दुआ कबूल हुई? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब बंदा दुआ के बाद मेरे फ़ैसले से राज़ी हो जाए, समझ ले उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, अगर तेरा बंदा बहुत ज़्यादा गुनाह कर बैठे तो क्या वो तेरे करीब हो सकता है? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब बंदा अपनी गलती पर नादिम होकर सिर्फ़ एक बार दिल से ए अल्लाह कहता है, मैं उसके और मेरे दरमियान के सारे पर्दे हटा देता हूँ। जब पिघले हुए दिल से पुकारा जाए तो एक ए अल्लाह पूरी ज़िंदगी के गुनाह मिटा देता है। एक बार अर्ज़ किया, ए मेरे रब, कुछ लोग थोड़ा करते हैं लेकिन उनका रिस्क बहुत होता है, और कुछ बहुत मेहनत करते हैं मगर उन्हें कम मिलता है, उसमें क्या हिकमत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, रिस्क मेरी तकसीम है, मेहनत तुम्हारी आजमाइश है। जो सब्र करता है मैं उसे वक्त पर देता हूँ, जो शुक्र करता है मैं उसके लिए रिस्क में इजाफ़ा कर देता हूँ। आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम दिया, अल्लाह ताला का सबसे प्यारा बंदा वो है जो दिल से नरम और ज़ुबान से शुक्रगुज़ार हो। अल्लाह तबारक व ताला हमें शुक्रगुज़ार बनाए और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा आपका हामी व नासिर हो।